Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello and welcome everybody. Today we have social media sensation and actress Zahara Sethiwala. Hi Zahara, this is Sukarna. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. Welcome to eTimes TV. Thank you. आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट और कब स्टार्ट? Okay. So it started like 4 years back. 4 years back, as I said, मेरा वीडियो में प्रमोट करती थी तो मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली दूसरे भी वायरल होते थे and that's how I started gaining more followers. So one thing is that so एक मेरा वीडियो था राजपाल यादव सर का जिसपे लाइक हाँ तब मेरे शायद कुछ 6-7,000 फॉलोअर्स थे और वो क्रॉस किया था 1 lakh something views. Okay. And that time I was like, okay, chalo mila isse acha song. But then what happened? I was in Pune, and Pune mein Zakir Khan, if you know, like of course you might know, India's best comedian, stand-up comedian. So unka show tha Pune mein, and in that show, because I'm a big fan of his, मैंने उनका भी dub किया था. After watching my dub, he started following me, and मैंने उनको बताया भी था कि हाँ सर मैं पुणे में हूँ और मैं आपका शो सिर्फ आपको देखने ही आई हूँ. So he knew I'm there. So he called me backstage in that show. He was like, he just directly texted me, come backstage. So I went to meet him. And there, he recorded a story of mine and he posted. As soon as he posted, अब उधर तो network भी नहीं मिला था. So I couldn't check whatever. But he posted from after leaving the show, I saw the story. And I was just refreshing and I was getting 200 followers, 500 followers, 600, ऐसा 1,000. Overnight, I think वो बस एक जाकिर खान सर का स्टोरी से मेरा फॉलोअर्स कुछ हुआ था 7,000 to 13 or 12,000 something overnight, and by the next day night वो था आराम से 12,000. I thought from that, and वो बस मतलब तब मैंने डब स्मैश शुरू ही किए थे करना, तो उससे मेरे राजपाल यादव वीडियो और सबको बहुत अटेंशन मिला, बहुत लोगों ने फॉलो किया, बहुत लोग जान गए अच्छा ये ऐसा डब करती है, बहुत सही करती है ऐसा. So, वो जो मेरे राजपाल यादव पे और जो इतने व्यूज आ गए वो और फैला. उस वीडियो को देखा था मेरे फर्स्ट शो के डायरेक्टर सर ने. वो होता है ना आपकी प्रोफाइल पे आ जाते, तब एक्सप्लोर था, अब इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर नहीं है, तो एक्सप्लोर पे वीडियोस आ जाते थे. तो मेरा ये वीडियो उनके एक्सप्लोर पे आया था और उन्होंने मेरा वीडियो देखा एंड ही वाज अमेज्ड. He was like a girl so young with such good comedy, like comic expressions होता नहीं है लड़कियां कॉमेडी में. he told my mom लड़कियों से ज्यादा कॉमेडी नहीं होता है, but your daughter is very good. So we are starting with a new show on Anti and we would want to have a look test of her. So we came to Bombay, my mom and me. I was like 18 years old. We came to Bombay, look test diya, and I cleared the look test. And then they said कि we will just call you in a day or two. But the same day शाम को ही मुझे confirmation आ गया था that she is selected. We are taking her. And yeah, that's how it happened. That's how my first show happened in Mumbai. Yeah. And what was the name of the show? Bakula Bua Ka Bhoot on Anti. And then Happu की उल्टन पलटन happened. उसके बाद. So then, not right then. So the Bakula Bua Ka Bhoot it got shut in like 6 months. वो 6 महीने में बंद हुआ. उसके बाद कुछ काम नहीं था. उसके बाद for 1 year, then I went back to Indore. I was like कैसे क्या करूँ अभी आगे, कुछ contacts नहीं है, कुछ नहीं, अभी क्या करूँ. So I have a crazy passion for dancing. Like I'm like जितना एक्चुअली पैशनेट मैं इसके लिए हूँ एक्टिंग के लिए उतना ही डांसिंग के लिए. बट एक चीज के लिए बहुत सॉर्टेड हूँ कि डांस मेरा करियर नहीं है, मेरा करियर एक्टिंग है. मुझे कभी भी डांस से कमाना नहीं. आई लव लर्निंग डांस. So I told my mom that मुंबई में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स है and they have the best institutes in Mumbai. I want to shift to Mumbai. Till I get my new work, I want to work on myself. I want to spend my time learning dance, and they being very supportive. They were like, okay, yeah, you can go. Let you do your training. They are like since forever believed in my work. They have seen me working hard. They have seen me like missing my exams and studying acting and watching movies just So they have seen my passion for acting. They are very sure he kuch na kuch karegi. So we are gonna just like let you do whatever you want. Just do it. So फिर मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग यहाँ डांस में किया था. तब तक कुछ काम नहीं था. After a year, I got a call
I was in Goa and I got a call from a creative director, and she said that I got your contact from someone working in Bakula Bua. So sorry, Bakula Bua ka booth. And so we are here working in Bhabhi Ji Ghar Par Hai. We are from Edit to Productions, and Bhabhi Ji Ghar Par Hai में एक cameo चाहिए अभी एक गुजराती लड़की का. And we got your number from Bakula Bua ka creative team. So yeah, we would love to have you for a look test. Can you come? So as soon as I came back to Bombay, I gave that look test. And in 2 days, they told me that we like you and we want you to do this character of this Gujarati girl. So again, I worked with Apara Mehta ma'am. I worked in Bakula Bua ka booth also, and there also I worked again with her. She was my mom in that cameo. And so when I did Bhabhi Ji Ghar Par Hai, Edit to Productions, they were starting with a new show in like next 2 months, Kappu Ke Ultan Paltan. And that's how they wanted to, like, तुम्हारी आवाज tomboyish है. And I think we think that you're going to be great as a Haryanvi character. They called me for audition. उन्होंने मेरा Haryanvi language सुना एक बार, कैसा है क्या है, and they liked it. And that's how I got Kappu Ke Ultan Paltan. And that show you decided to quit in between. Kappu, yeah. Yes. Not in between, like after like 2 years, yeah. My contract, it's not like कि मैंने बिना contract के अब contract को बीच में कुछ किया. No. My contract was on renewal. So yeah, that I found the best time. उसके बाद what opportunities are you looking to right now? It's not like I have a preference, like as I told you before, I'm good with anything till it's a good character. It holds a good character. So I got for a TV show, and I got who doesn't want to work in films? Sorry, as an actor. But that's tough, too hard to find your role for a film. But yeah, till then I never say no to auditions. Like when I see what character it is and whatever role it is, I go for it. So yeah, I keep getting auditions. Not that much, but I keep getting. Yeah, so I keep doing that. I mean, Mumbai में रहना is not easy. Surviving in Mumbai, it's not at all easy, especially for actors who have just made an entry. आप financially कैसे sustain कर रहे हो? So basically, अभी तक I won't say that I'm like a very क्या बोलते हैं, बहुत ऐसे खर्चीली नहीं हूँ, बहुत संभल के रहती हूँ. I'm not that, बहुत ये करती हूँ. But yeah, thank God that I have my savings. Whatever I've worked, however I've worked, I have my savings. It's like right now for like next 3-4 months I'm good, I'm safe. Like yeah, and I'm dead sure that in next 3 or 4 months I'm gonna get something. Yeah, I'm working for it. I'm working on myself, and I'm working on my work as well. Acting को लेकर, सब कुछ के लेकर. So yeah, I'm positive. Yeah, nowhere like in tension or in stress, nothing. कभी कभी होता है काम को लेकर. हर इंसान को होता है, सिर्फ एक्टर्स को नहीं, जिसके पास भी काम नहीं और काम ढूंढ रहे हैं. वो एक मोमेंट आता है एक दिन में, of like just crying and calm and ऐसा. But that's just a moment. I bring myself back. I talk to my family, and I just talk to them, and it just lightens my mood. They give the motivation and everything. They praise me and appreciate me, and they just like put me back. So yeah, I'm good. And apart from acting, did you ever feel that comedy is a platform which you can explore or you should explore? Comedy as in you mean stand-up comedy or that, like something like that? Yeah. No, never. Because I'm not that good with stand-up comedy. Not at all. I'm just good with comedy, like with my scripts and with mimicking people and jokes. Like I'll make faces while talking, and I can make you laugh. But I can't make stories and make you laugh. That's hard. Making people relate to it, and that's pretty hard. And it takes a lot of time too. So yeah, I never thought about it and never even got interested to do that. Yeah, I was always into acting. But ये mimicry का शौक कहाँ से आया? Like when did you realize you have this? So इसका क्रेडिट मेरे भाई को जाता है. So मेरा भाई है वो जो जिसने मुझे बोला था तू एक बार ट्राई तो कर, देखो मुझे डायलॉग्स लर्न होते थे. मेरा सबसे पहला चीज ये था, पहला टैलेंट कि
मैं मूवी एक बार देखती थी, अगर इंटेंस है तो 2 बार, लेकिन कॉमेडी है, टाइम पास एंटरटेनिंग है, एक बार देखती थी, मुझे डायलॉग्स बैठ जाते थे दिमाग में, इसके बाद ये लाइन है, वो डायलॉग्स लर्न होते थे। तो माय ब्रदर देन सजेस्टेड एक बार एक्टिंग तो ट्राई कर एक्ट। सो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कॉमेडी से एकदम तुरंत स्टार्ट नहीं किया था, पहले मैंने आलिया भट्ट को ट्राई किया था फ्रॉम हाईवे मूवी, then it came to Akshay Kumar sir, which also I do very nicely, एंड देन धीरे धीरे करके मैंने स्टार्टेड लाइक, तो मेरा भाई मुझे बहुत करेक्ट करता था, ये थोड़ा ओवर जा रहा है, ये थोड़ा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आई स्टार्टेड पुटिंग मोर अटेंशन टू द डिटेल्स, टू द टाइमिंग, एंड दैट्स हाउ it evolved, that's how it evolved, and yeah, that's how I got pretty good at it. Yeah, I started working on it, बोलती रहती थी, करती रहती थी प्रैक्टिस, कॉमिक टाइमिंग का, एक्सप्रेशंस तो मैंने ऐसे पढ़े कि लाइक अभी मैं जितना पास हूँ आपके, मैं और मेरा इतना पास रखती थी लैपटॉप, पूरा रात 4 बजे तक, अगर मुझे पता है नेक्स्ट डे मुझे भूल भुलैया का कोई सीन करना है, राजपाल यादव का या अक्षय कुमार सर का, मैं वो 2 से 3 बार मूवी रिपीट पे ऐसे इतना पास बैठ के देखती थी, ताकि बस एक्सप्रेशन समझ जाऊं, कैसे आ रहा है, आंख किधर जा रहा है, कैसा फेस बन रहा है, एवरीथिंग आई वांट टू कॉपी, बिकॉज आई वांट पुट सो मच हार्ड वर्क दैट पीपल सी कि एग्जैक्ट कैसे किया है। तो ऑफकोर्स उसमें टाइम लगा है, मेहनत लगा है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट टिकटॉक थिंग्स एंड स्मैश थिंग्स जो आया था, जो सब करते लाइक बस करने के लिए। आई वांट टू डू टू लाइक रियली एंटरटेन पीपल विद दिस स्किल। सो या, क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर। सो कभी मतलब इतने एक्टर्स की मिमिक्री किए हो, did you get any response from any actor so far? Oh, so yes, I mean it started with, I think मैंने गोविंदा सर के भी वीडियोस किए हैं, बिग फैन। सो उनका भागम भाग एंड पार्टनर मूवी के डायलॉग्स मैंने किए हैं, एंड उनकी डॉटर का कमेंट आया है मेरे वीडियोस पे, ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग। फिर मैंने कमेंट बैक किया, प्लीज शो इट टू सर, बिग फैन। तो उनका कमेंट बैक भी आया, यस आई विल, दिस वाज ग्रेट, ऐसे करके। देन जॉनी लीवर सर की जो डॉटर है, उन्होंने तक प्रेज किया मेरे वीडियो पे, एंड देन उनको डीएम भी किया था। जॉनी लीवर सर ने मेरा वीडियो शेयर किया था स्टोरी पे, जो मेरा सबसे पहला उनका डब था, आई थिंक सेकंड डब था या, तो उनकी डॉटर ने ऑफकोर्स दिखा रहेगा, तो उन्होंने अपने स्टोरी पे मेरा डाला था। सो या, कुछ तो हुआ है, एंड या दैट फील्स ग्रेट। What's your thought on Big Boss? बिग बॉस लाइक अगेन, बिग बॉस की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और कभी मतलब मैं हमेशा मेरे दोस्तों को मतलब अभी तक बहुत मना करते हैं, कोई भी बोलता है इतना पसंद करती है, इतना देखती है, इतना फॉलो करती है, जाती क्यों नहीं है, ट्राई क्यों नहीं करते। आई एम लाइक बिग बॉस नेवर, बिग बॉस तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है, डर लगता है, डर लगता है कि मतलब यार 24 घंटा कैमरा तुम्हारे सामने, कितना संभल के रहना पड़ता होगा, क्या बोलना, क्या करना, ये वो, गाली निकल जाए मुंह से तो मम्मी पापा सुन लेंगे, तो बहुत बहुत चीजों का डर है। सो बट देन by this year I don't know why I was into a lot of mixed feelings. I was like यार कर सकती हूँ, यार करना तो चाहिए, जब इतना पसंद है शो, इतना देखती हूँ, कितना मजा आएगा, खुद के लिए भी वो फैन फॉलोइंग होना, खुद को इतना फेम मिलना, दैट थ्रू बिग बॉस। बिग बॉस में सबसे बड़ा रियलिटी शो मानते हो, जो कि शायद है भी, पता नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया, बट आई थिंक बिग बॉस सबसे बड़ा रियलिटी टीवी शो है। तो उससे अगर तुमको ये मिल रहा है, ना मिल, बट बस वही है ना, डर लगता है कि लाइक कुछ भी हो सकता है, नाम यहाँ से अच्छा भी हो सकता है, नाम यहाँ से बुरा भी हो सकता है, बट द काइंड ऑफ द पर्सन दैट आई एम, और बहुत अलग, मतलब मैं अलग तो नहीं बोलूँ, बट एक्चुअली जो वैल्यूज होने चाहिए ना फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू, व्हेन एक तो आप अलग शहर में आके रह रहे हो, तो क्या चीजें, तो मेरे वैल्यूज बहुत ऐसे है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्वीट, काइंडनेस बहुत है, ह्यूमैनिटी में मेरे को बहुत है, किसी से भी ऐसे रूड नहीं हो जाती। तो मेरे को ऐसा फील होता है जब मुझे पता है मेरा नेचर ऐसा है, सो आई नो दैट कभी भूल चूक में किसी को हर्ट कर सकती हूँ, बट इंटेंशनली कभी नहीं होगा। मैं दिखने के लिए बिग बॉस में कभी कुछ नहीं करूंगी, लड़ लिया किसी से या कुछ, वो मेरे शक्ल पे भी नहीं है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ, और है ही नहीं मेरे अंदर वो चीज। सो यार लड़ाई झगड़े वगैरह सब होंगे, बट या अगर बिग बॉस में जाने का मौका आता है, नहीं मिस करूंगी। आई थिंक कोई भी नहीं मिस करेगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। Yeah, so I won't miss it. I get Big Boss. देखो अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए तो। मैं तो इतना होप करती हूँ एक्चुअली, जब इस साल थोड़ा कुछ तो हुआ था बिग बॉस को लेकर, सो आई वांटेड टू सी ऑडिशंस आर स्टिल ओपन, बट आई थिंक आई गॉट लेट बाय 2 or 3 days,
2 या 3 दिन पहले ही ऑडिशंस बूथ पे खत्म हो गया था. एंड देन आई हैव लाइक 2-3 लोग हैं यहाँ मुंबई में जो मेरे स्कूल के ही हैं एंड दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री देमसेल्व्स. मैंने उनसे बात की थी. दे वर लाइक ओके वी कैन सी लाइक लेट मी सी ऐसा करके. एंड देन आई वाज लाइक अगर अभी सही में हो गया ना क्लोज प्लीज ट्राई फॉर वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर उसमें मेरा कुछ हो जाए. दे वर लाइक वी विल ट्राई वी विल सी हम देख के बात करते हैं बट ऑफ कोर्स नहीं होगा कुछ. सो आई नो इट्स नॉट दैट इजी. ऐसे किसी से बात करके तो नहीं होगा बट आई वाज स्टिल होपिंग. आई हैड अ लाइक बहुत होप था मेरे अंदर कि कुछ ना कुछ मुझे रिस्पॉन्स शायद मिल जाए. मैं वैसी पर्सनालिटी हूँ, एंटरटेनमेंट का पैकेट हूँ, भरा पड़ा है एंटरटेनमेंट मेरे में. एंड बहुत ऐसा मतलब मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता मैं 22 साल की हूँ. बहुत बबली हूँ, बहुत बहुत बच्ची हूँ मैं. बात करने में रहने करने में मैच्योरिटी है, समझ है, बट हाँ मैं बहुत बच्चे जैसा रहना पसंद करती हूँ. मुझे उसमें बहुत मजा आता है. सो बहुत एक अलग सा कैरेक्टर हूँ. लाइक सो आई रियली यूज्ड टू फील दैट मैं बिग बॉस वाली पार्टी तो होना चाहिए कुछ तो. आई वाज होपिंग who knows अभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ नहीं बिग बॉस में. who knows if something might happen. एक्टिंग को लेकर लाइक डू यू हैव एनी इनहिबिशंस और लिमिटेशंस के ये स्क्रीन पे नहीं करूंगी because you are just starting out right now as an actress. Do you have any limitations in your mind? Yeah, of course I do. Like I don't feel like I have that confidence to go bold on screen. Like not for now especially. अभी कुछ शुरू ही नहीं किया है. You know, अभी तो वो limitations के अलावा भी बहुत कुछ explore करना बचा है. तो जो मुझे ऑलरेडी करना है वो तो मैं कर लूँ पहले, फिर मैं limitations को खत्म करने पे आऊंगी. So बहुत दूर का सोच है वो. But yeah, my limitations are that like I'll think like 10 times before doing a bold scene on screen, television, wherever. Not that confident. Yeah, that might be something. Nothing other than that. Yeah. And you have done so many videos. कोई ऐसा वीडियो है जो like जिस तरह का रिस्पॉन्स आप चाहते थे उस तरह का रिस्पॉन्स ना मिला हो, लोगों को इतना पसंद ना आया हो? ओके ऐसा आई थिंक वो जितने भी वीडियोस मेरे इंग्लिश सॉन्ग्स पर है यू टेक वो कुछ हिप हॉप भी हो सकते हैं, कुछ मूवमेंट भी हो सकते हैं. मुझे उन पे बहुत होप रहती बिकॉज दैट इज समथिंग. सी बॉलीवुड क्या है, हर हिंदुस्तानी के दिल से निकलता है. बॉलीवुड मेरे को ऐसा फील होता है कि नहीं है हार्ड, तुमको बस गाना समझ के गाने पे ग्रूव करना है और बॉलीवुड होगा बॉडी से. हर हिंदुस्तानी के अंदर ही रहता है बॉलीवुड. But when it comes to doing hip hop movement or like just that, उस पे मेरे को बहुत फील होता है. उस पे मिलना चाहिए रिस्पॉन्स बिकॉज it takes hard work. हिप हॉप करना इजी नहीं है. हिप हॉप करना इजी नहीं है. मूवमेंट कोरियोग्राफी करना इजी नहीं है. उसमें वो पेशेंस जो चाहिए, जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो बॉडी कंट्रोल होना चाहिए, वो बॉलीवुड के आसपास भी नहीं है. वो इतना इजी नहीं है. बॉलीवुड थोड़ा है. सो या दैट जितने भी मेरे वीडियोस है जो इंग्लिश सॉन्ग्स है और वो मोस्टली बिल्कुल भी बॉलीवुड स्टाइल तो होते नहीं, उन पे मुझे बहुत फील होता है इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये लोगों को समझ आना चाहिए ऐसा. सो या Also, Zahara, I want to ask you, like, personally, have you experienced or like, do you feel that look-wise, there are certain limitations कि मुझे इस तरह का रोल नहीं मिलेगा या इस तरह का रोल मिलेगा? सी मैं अगर आप मुझसे ये सवाल शायद कुछ साल पहले करते तो शायद मैं हाँ बोलती. बट अब मुझे नहीं लगता. अब ऐसे काम करते हैं लोग, इवन आर नॉट जस्ट कास्टिंग पीपल, डायरेक्टर्स जिनका भी डिसीजन में हाथ होता है वो वैसे नहीं सोचते. कुछ लोग फिर भी सोचते हैं बट अब मेजोरिटी वैसे सोचने वालों की नहीं है. Like I see people on screen, not all girls are in shape and have good features and are fair and like legit pretty like goddesses. Not every woman working on screen is like that. Some women are really taken judged by the characters, like casting people just see their face and they are like ये character इससे हो सकता है. They get that feeling, not by looks or by body or whatever, but they get that feel. Casting लोगों का है ये मैजिक. उनको तो देखकर ही समझ आता है कि ये कर लेंगे और इसीलिए उसको पुश भी करेंगे. अगर वो इंसान से नहीं भी हो रहा है तो वो लोग उसको पुश भी करेंगे कि हम फील करते हैं तुमसे होगा तो तुम ट्राई करो, ये करो. सो या आई थिंक अर्लियर ऐसा बहुत होता था. मैंने खुद फेस किया है. जिससे भी बात करती थी पहला कमेंट मुझे आता था, यू आर वेरी चबी,
lose some face fat, lose some body fat, and then you try, and then you try. बहुत मुझे खुद मिले हैं, but I never really like took it seriously, never, because I never believed in that. ये कैसे जरूरी है? एक्टर हूँ, मेरा काम, मेरा चेहरा, मैं मॉडल नहीं हूँ जो मेरा इतना सब, मेरा बॉडी, मेरा फेस ऑन पॉइंट दिखना चाहिए. मैंने कभी उस चीज को सीरियसली नहीं लिया until and unless I felt like working on it. So when I saw myself in हप्पू की उल्टन पलटन, वो रोज का टीवी शो है, और क्योंकि अब वो शो एवरीडे जॉब था, तो मेरा डांसिंग भी छूट गया था, और फिर डाइट पे भी ध्यान देना मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, देना चाहिए था. So I put on a bit weight. When I used to see myself on screen, तब मुझे थोड़ा लगता था, yeah, I think I should. मेरे को खुद ही मजा नहीं आया. जब मुझे मजा नहीं आएगा, तब definitely I'll do, because then it's all about me, how I am feeling. If I am feeling good and comfortable, I'm not going to listen to anybody telling me कि तुम ये lose करो. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फर्क पड़ेगा, फिर I'll go. So yeah, मिला है वो, but मुझे नहीं लगता अब मिलता है, because अब I have also come across people who tell me on my face कि you are very good with acting. Like ये ऐसा लगता है कि तुम बस थोड़ा मेहनत करोगे and you will do it. Just like take time ऐसा करके. And they are not just casting people, random people. Casting तो वो तो पता ही है, ऐसे ही बोल देते ताकि तुम्हें दिलासा देने के लिए. But yeah, I see that myself. So किसी को बोलने का जरूरत नहीं. I see that myself that women right now are not like really judged on their basis of their looks and their body. Yeah, people right now are really like like interested in knowing ये क्या क्या character कर सकती है, इससे क्या क्या हो सकता है, and they wanna play with that person. Acting को लेकर ये क्या क्या ये कर सकती है. So yeah. Thank you for giving us your time. Wish you all the best. Thank you. Bye. Take care. Thank you so much for having me. Thank you. Really enjoyed it. Same here. Bye. Bye bye. Thank you.